channel AVN Knowledge. Again and again, welcome to our channel AVN Knowledge. So till last video we talk about importance of motivation. Today we'll go further from the yesterday's topic, that is motivation, importance of motivation. So there were 11 importance of motivation. Till last video we talk about 7 motivation. So today we'll start with the 8th one, that is facilitate changes. Facilitate changes. So an employee is always have a negative approach regarding the changes. Say for example, let's take a small example of your school only. Your school timing is 7 to 1, 7 in the morning to 1 in the afternoon. If somebody is asking you to come around 6 o'clock or sometime 9 o'clock in the morning, then you will feel negative. Why these people are asking me to come at 6 o'clock in the morning? अगर आपको कोई कहे कि आपको सुबह स्कूल में 7 बजे की जगह 6 बजे आना है, तो आपको नेगेटिव फील होगा. But if somebody is motivating you on the other hand, अगर आपको कोई 6 बजे आने के लिए कह रहा है, but there is someone who is also motivating you, then you can easily come and you can easily accept this changes of timing. So in the same way, facilitate changes. How? An employee always has a negative approach regarding the changes in an organization, but changes are necessary. Changes are necessary. Without doing the changes, an employee or management get bored. अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, किसी भी टाइप का कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, then organization, people, employees and all other audience get bored. So if you want that your employees, your labor should accept that changes easily, positively, then what you have to do? Motivation. You have to do motivation. आपको अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना होगा. Then only you can change their behavior from negative approach to positive approach, and they will be in your favor only. अगर आप उनको properly, in a proper manner मोटिवेट कर रहे हैं, तभी वो आप उनको क्या कर पाएंगे? उनकी नेगेटिव अप्रोच को पॉजिटिव अप्रोच की तरफ कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी वो आपके फेवर में आ पाएंगे. अदरवाइज वो आपके फेवर नहीं करेंगे. सो इफ यू वांट that your employees, your labor should be in your favor, then what you have to do? You have to motivate them. Is it a single time approach or is it a single time activity? No, I told you in the last video, this is a continuous approach that management should follow. So motivation is necessary on a particular period of time, on a continuous basis, so that you can changes the negative approach your employee or your labor to the positive approach. We'll move to the another one, that is called development of team spirit. Development of team spirit. मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, विच इज गिवन बाय हेनरी फ्योल. वहां पर हमने टॉपिक की बात की थी एस्पिरिट डी कॉर्प्स. एस्पिरिट डी कॉर्प्स, तो मैंने वहां पे आपको बताया था एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट, टीम की भावना होना. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज एज अ टीम, आपकी लेबर एज अ टीम काम करें, मैंने आपको पहले ही बताया था वन टीम वन ड्रीम, जहां हमने बात की थी यूनिटी ऑफ एक्शन की, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की. तो अभी हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट. तो डू यू वांट दैट your employees or your labor should work as a team spirit. They should have cooperation spirit. उनके अंदर आपसी सहयोग की भावना होना का जरूरी है. तो you have to motivate your employees and you have to motivate your labor as well, because if you want, then they should work together, they should help each other, then there should be motivation. If your employee is motivating, then only he will feel helping nature. अगर आपका एक एम्प्लॉय क्या है, मोटिवेटेड है, तभी वो क्या फील करेगा? हेल्पिंग नेचर करेगा, हेल्प करना चाहेगा. और आप किसी की हेल्प करेंगे तभी आप सामने वाले व्यक्ति से हेल्प एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी भी हेल्प करेगा. इफ़ यू आर नॉट हेल्पिंग एनीवन, अगर आप किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम दैट पर्सन. तो आप उससे भी हेल्प की उम्मीद मत कीजिएगा. तो आपके एम्प्लॉयज़ में, आपके मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ में हेल्पिंग नेचर कब क्रिएट होगा?
हेल्पिंग नेचर कब क्रिएट होगा? जब आपके एम्प्लॉयज क्या फील करेंगे? मोटिवेटेड फील करेंगे। तो मोटिवेटेड फील होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक मैनेजमेंट को मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, टाइमली मोटिवेटेड हो रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एनहांस कॉर्पोरेट इमेज और यू कैन से गुडविल। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुडविल? हिंदी में कहेंगे ख्याति। आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी में आप लोगों को पढ़ा होगा गुडविल, ख्याति के बारे में। सो इफ यू फील, देखो समटाइम एग्जांपल्स हम समझ लेते हैं। समटाइम हम क्या करते हैं, जनरली इंटरनेट पर जाकर उस पर्टिकुलर कंपनी का या किसी भी चीज़ का व्यूज़ देखते हैं, उसकी रेटिंग देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, इस मूवी को कितने स्टार मिले, इस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज़ के क्या रिव्यूज़ हैं। अगर मैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ तो व्हाट आई डू, आई जस्ट चेक द रिव्यूज़ ऑफ दैट एम्प्लॉय, ऑफ दैट कंपनीज एम्प्लॉय। तो मैं उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ चेक करूंगा कि व्हाट दे से, वो क्या कहते हैं। समटाइम आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स पर काफ़ी एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी के बारे में दे आर प्रेजिंग देयर एम्प्लॉय, देयर कंपनी, वे अपनी कंपनी की तारीफ करते हैं। वाई दे आर प्रेजिंग देयर कंपनी, वाई दे आर नॉट ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट देयर कंपनी? बिकॉज दे आर हैप्पी विद देयर ऑर्गेनाइजेशन, they are happy with the activity, they are happy with their managers, they are happy with their subordinates, and everyone is happy. And when they will become happy? When they are motivated, when they feel motivated. तो कब happy feel करेंगे? जब वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। और अगर वो मोटिवेट हैं तो अपना रिव्यू, जब वो इंटरनेट पे अपना रिव्यू डालेंगे तो वो क्या डालेंगे, यस आई एम हैप्पी हियर, आई एम गेटिंग दिस, माई एम्प्लॉयर इज टेकिंग केयर ऑफ मी, आई एम गेटिंग दिस काइंड ऑफ इंश्योरेंस, आई एम गेटिंग दिस मच, आई एम गेटिंग दिस मच। तो ये सारे व्यूज़ वो अपने इंटरनेट पे प्रेजेंट करता है। तो उसी व्यूज़ को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है या नहीं। सो नाउ डू यू थिंक कि एक मोटिवेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल और इमेज को इंक्रीज करता है? अब आपका आंसर होना चाहिए यस। क्यों? क्योंकि एक एम्प्लॉय हैप्पी कब हुआ? जब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय को क्या किया, मोटिवेट फील करवाया। सो मोटिवेशन से ही क्या होगा, एक एम्प्लॉय आपका हैप्पी रहेगा, और हैप्पी रहेगा तो उसे वो 4 लोगों को जाकर बाहर बताएगा कि आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड ऑल्सो कम विद मी एंड स्टार्ट वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। देन योर कॉर्पोरेट इमेज विल इंक्रीज। जैसे आपने नाम सुना होगा डिफरेंट बड़ी कंपनियों का, हर व्यक्ति बड़ी कंपनियों के साथ आज के ज़माने में काम करना चाहता है। जैसे बात करें गूगल की, तो काफ़ी लोगों का सपना होगा कि गूगल में काम करने का। क्यों गूगल में काम करने का आपका सपना है? क्यों आप किसी छोटी कंपनी के साथ काम करना नहीं चाहते? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड द व्यूज इन द इंटरनेट हाउ गूगल इज टेकिंग केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज, कि एक बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की कैसे टेक केयर करती है। वो उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है, टाइम पे मोटिवेट कर रही है, तभी उनके एम्प्लॉयज़ डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर गुड व्यूज़ दे रहे हैं। और इसीलिए उसकी आज कॉर्पोरेट इमेज अगर अपन बात करें तो बहुत ही अच्छी एक कॉर्पोरेट इमेज है डिफरेंट कंपनीज की हम बात करें। तो मोटिवेशन क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट इमेज को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, that is last but not the least, key to behavioral management action. If you want that your employees or your labor should behave in a proper manner, then again the same things comes again and again. Motivation is very necessary. So in all the element topics we learned about the importance of motivation, why it is necessary, if we are not motivating our employee, what are the circumstances that we may have to face. So I would again recommend, if you are a businessman, if you are parents, if you are teacher, then do remember to motivate your children, your employees, your colleague and all other person. So now we'll move to another topic. It is totally related with the motivation that we talk about. I was telling you we'll talk about later. So in this video we are talking about techniques of motivation.
we'll talk about techniques of motivation. So there are two techniques of motivation. मैंने आपको बात की थी कि हम कैसे मोटिवेट करें, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करें. सो हम दो टाइप की मोटिवेशन की बात करेंगे. नंबर वन, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मोटिवेशन. नंबर टू, वी कॉल्ड इट नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल टेक्निक. नाउ दिस वर्ड itself define financial motivation. Financial motivation means if any of your employee is working very good. Let's take an example again. You are in 10th standard or you are in 12th standard and you got very good marks in your board examinations. Then your school may ask you to award, and there are many persons who will always praise you for your good marks. Now you answer me my question, why all other person are not praising everyone? क्यों बाकी के लोग सभी को प्रेज नहीं कर रहे हैं, सभी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, केवल आपकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? आपको ही बार बार शाबाशी क्यों दी जा रही है? Because you have done hard work and you have obtained very good marks in your different subjects. तो आप ही को क्यों तारीफ मिल रही है बार बार, बाकी के लोगों को क्यों नहीं मिल रही? बाकी और भी स्टूडेंट थे आपके क्लास में, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, बाकी लोगों को प्रशंसा नहीं मिल रही है, तारीफ नहीं मिल रही है. वाई ओनली यू? बिकॉज यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए आपको मोटिवेशन मिल रहा है. सो इज दिस अ फाइनेंशियल मोटिवेशन? No, it's a non-financial motivation because everybody is praising you. Is somebody is giving you some money? No, because everybody is praising you. So we were talking about financial and non-financial motivation. In financial motivation, I will describe in brief only. We'll talk about later in a different way. So in financial motivation, if an employee is doing a very good job and we as an organization is doing something financial to him, then it's called financial motivation. जैसे आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स को, आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स को दिवाली पर बोनस मिलता है, राइट? समटाइम एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है. वाई? उस एम्प्लॉय ऑफ द ईयर के अवार्ड में कुछ आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है? दीज ऑल थिंग्स कम्स इन फाइनेंशियल मोटिवेशन. अगर मैं कहूँ सबको 10,000 रुपीज़ बोनस मिल रहा है, लेकिन आपके फादर को 25,000 रुपीज़ बोनस मिला है, एक्स्ट्रा क्यों मिला है? बिकॉज दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन कंपेयर टू अदर्स. क्योंकि उन्होंने बाकी सबसे क्या किया है? अच्छा काम किया है. तो उनके जो बॉस हैं, उनके जो मैनेजमेंट है, उन्होंने उन्हें क्या दिया है? मोटिवेट किया है. एंड विच काइंड ऑफ मोटिवेशन दिस इज? दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मोटिवेशन. इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल मोटिवेशन. नंबर वन. नंबर टू, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन. इन नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन देयर आर मल्टीपल थिंग्स which we can include. Let's take an example. किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया बट नॉट दैट मच गुड. अच्छा था बट नॉट दैट मच गुड, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था बट अच्छा था. उस कंडीशन में योर बॉस विल कम टू योर सीट एंड गिव यू पैट ऑन द बैक. आपके सीट पर आएंगे और आपको शाबाशी देंगे, तारीफ करेंगे. क्या यहाँ पर इस केस में आपको कुछ मनी नहीं मिला, मॉनेटरी बेनिफिट हुआ? नहीं. जब आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है तो दैट विल कंसीडर एज अ नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन. एंड इफ यू आर मोटिवेटिंग with a financial benefit, if you are motivating someone with a financial benefit, with money, अगर आप किसी को पैसे से मोटिवेट कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे फाइनेंशियल मोटिवेशन. अब आप कहेंगे सर फाइनेंशियल मोटिवेशन इज बेटर और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इज बेटर. नाउ यू टेल मी विच वन इज बेटर. आप में से काफ़ी लोगों का जवाब होगा फाइनेंशियल मोटिवेशन इज बेटर, और आप में से कुछ ही लोगों का जवाब होगा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन इज बेटर. हाउएवर बोथ आर बेटर साइमल्टेनियसली. अपनी अपनी जगह पर दोनों ही बेटर हैं. अब आप कहेंगे कि सर वो कैसे? सी व्हाट हैपेंस, इट्स manager responsibility, it's management responsibility to identify the person that how a person can be motivated. ये एक मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आइडेंटिफाई करे कि एक व्यक्ति कैसे मोटिवेटेड होगा. वो फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट होगा या फिर वो
नॉन फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट होगा, वो फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट होगा या वो नॉन फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट होगा। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस इज अ मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ पर्सन दैट हाउ अ पर्सन कैन बी मोटिवेटेड, एक व्यक्ति को हम किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। सो हम बात करेंगे फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल में हम बात करेंगे डिफरेंट, आपको सैलरी इंक्रीमेंट दे देना। अगर मुझे लग रहा है कि मिस्टर ए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो व्हाट कैन आई डू एज इन फाइनेंशियल मोटिवेशन, आई कैन इंक्रीज हिज सैलरी, आई कैन इंक्रीज हिज सैलरी, मैं उनकी सैलरी में इजाफा बढ़ोतरी कर सकता हूँ, राइट। इज दिस कॉल्ड फाइनेंशियल मोटिवेशन? यस, दिस इज द फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो मुझे लगा कि मिस्टर ए ने बहुत अच्छा काम किया, तो मैंने क्या किया, उनकी सैलरी में, उनके वेतन में क्या की बढ़ोतरी कर दी, इंक्रीमेंट कर दिया, तो इस कॉल्ड फाइनेंशियल मोटिवेशन। और इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं? बोनस, गिविंग हिम अ गुड बोनस, अगर आपने क्या किया, उनको एक बहुत ही अच्छा बोनस दे दिया, अच्छा बोनस दे दिया, आपने उनको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? आपके फाइनेंशियल मोटिवेशन के अंदर आएंगे। जबकि अदर हैंड पर हम बात करें तो वो आता है नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। तो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन में क्या देखना है हमें? नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन में जनरली हम क्या करते हैं, किसी की डेजिग्नेशन को इंक्रीज कर देना, डेजिग्नेशन को इंक्रीज कर देना। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आप ए लेवल पर काम कर रहे हैं और आपको मोटिवेट करने के लिए आपको ए प्लस लेवल पे भेज दिया गया, ए लेवल की जगह कहां भेज दिया गया आपको? ए प्लस लेवल पर आपको जब प्रमोट कर दिया गया, इज दिस ऑल्सो मोटिवेशन? यस, दिस इज ऑल्सो अ मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि आपको क्या कर दिया गया, आपका प्रमोशन कर दिया गया, आपको ए लेवल की जगह कहां भेज दिया गया? ए प्लस लेवल पर, जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, बढ़ गई है। पहले आपके पास केवल 5 टास्क हुआ करते थे करने के लिए, नाउ वी हैव 7, 8 और 10 टास्क टू कंप्लीट। सो नाउ यू विल फील मोटिवेटेड। Is this called a financial or non-financial motivation? It's called a non-financial motivation. So I hope you got my point now. Difference between financial and non-financial motivation. How financial motivation is different from non-financial motivation. जहाँ भी मोटिवेट करते समय पैसे, मनी की बात आ जाए, जहाँ भी मोटिवेट करते वक्त पैसे या मनी की बात आ जाए, तो हम उसे कहेंगे फाइनेंशियल मोटिवेशन। और जहाँ जहाँ पर मनी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पैट ऑन द बैक करना, शाबाशी दे देना, प्रमोशन कर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देना, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर देना, ये सब चीज़ क्या है? आपके नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के अंदर आते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स, फाइनेंशियल मोटिवेशन और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। इफ यू स्टिल हैव अ माइनर डाउट, इवन माइनर डाउट, then you can ask me by commenting on our video. Whatever question you have, just put your question over there and I will try to resolve your questions as soon as possible. Thank you for watching, keep learning, and one more thing, do not forget to subscribe our channel that is called AVN Knowledge. Thank you so much, have a good day ahead. Thank you.